Hello, hi everyone. Welcome or welcome back to my channel Janvi's Learning. How are you guys? I hope you are doing really great and safe at your place. Today, as you read the title, we are going to talk about some of the steps which will help you to speak fluent English, right? So this is the video which is going to be for the people who are beginner, who just started their practice journey, and for the people who are in the middle of their journey. For both of them, these are the going to be beneficial points, and these are not the steps which I am just telling you. Even I have followed it when I was actually doing my practice, and even now I somehow some of the points I do follow now as well, because fluency take years, right? So it is not the thing कि ओवन suddenly ये हो जाएगी over a night, all of a sudden you will be fluent in English one day. So it is not like that. It asks for efforts, it asks for practice, and that is what we are going to discuss today, right? So let us talk about the first step. What I have for you is that talk to yourself. This is the point which is going to be beneficial for the people who just started their English speaking journey. So though who are the beginner, this step is going to help them. Talk to yourself. So go in front of the mirror and take any random topic, whatever you want to, and just start speaking upon that. So this will help you to increase your confidence, and this will help you in practicing, because I have heard from so many people that that they don't have people to talk with, or they don't have people with whom they can practice their English speaking. So for them, this is going to be the beneficial point. Now you can talk to yourself. Just go in front of the mirror, take any random topic and start speaking upon that. And the people who feel a little scared of being judged and being mocked at, so for them also, for practicing them, it is going to help you. And then when gradually you will become a little, you will have a good command over your English a little, then you can start talking with others as well. And I would suggest, this is my honest advice, that if you have people with whom you can practice, just do that. Just take that advantage. Just ask them that I want to do my practice of English, would you want to do with me? If they are equally interested like you, if you feel like. And if you do not have people, you feel like कि no, they guys won't help me a lot, वो नहीं help करेंगे. So in that way, you don't need anybody else. You can just take any topic and start talking in front of just yourself, and you wouldn't be scared at that moment, right? So practice it by yourself. And take any topic. Topic could be anything, like it can be about your best friend, it can be what you did in a whole day, so it could be anything. Just try to speak on that in English. Speaking is the most important thing here, right? Which you have to do practice on a daily basis. Try to do that. Let us move to the next point, which is track your progress daily. Going to be the important point. When you if you are actually serious of learning English, so you have to do practice daily. Sometime you should give time for it. If it is important for you, you should actually give it a time, let's say for 10 minutes, for 15 minutes. So in your busy schedule as well, you can find some 10 minutes for your practice, right? So you can actually manage that, I guess. So try to do that. And the point is here that track your progress daily. So you can take any sheet, any chart paper, whatever you want to, and just write on that day one. For example, let me show you. First, say you are taking this. There is a one sheet you took for yourself. It could be okay. The sheet should be this proper square. मैं बना रही हूँ इसलिए वो proper नहीं बना. So it is like the idea here is that on take any random sheet, और वहाँ पे आप लिखो day 1, day 2, day 3, and how many time and how much time you did practice. Like for 5 minutes I did in day 1, फिर अगेन मैंने 5 मिनट करी दूसरे दिन, फिर मैंने 10 मिनट करी. ग्रेजुअली आप टाइम को इंक्रीज करो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस इंक्रीज करो. यहाँ पे टिक मारते जाओ कि डे 1 मैंने प्रैक्टिस कर ली, डे 2 मैंने प्रैक्टिस कर ली. सो जितने टिक आपके शीट पर होंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. सो ट्रैक योर प्रोग्रेस, मॉनिटर इट. जस्ट राइट इट समवेयर एल्स कि हाँ मैंने आज की प्रैक्टिस इतनी करी, फिर मैंने अगले दिन इतनी प्रैक्टिस करी.
So it will help you, and do practice daily if you are actually serious of learning English. ठीक है. Next point I have for you is use simple vocabulary. Very very important point. I have listened or I have seen people that first they try to grab or cram the advanced word एंड देन दे फील कि मैं तो बाद में बोलूँगी, पहले मैं ज़्यादा सीख लूँ, नए नए वर्ड ढूंढ लूँ और फिर मैं बोलूँगी. नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एन इंटेलिजेंट आइडिया. बिकॉज स्टार्टिंग में इनिशियली देखो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड है, इतने सारे सिनोनिम्स हैं, इतने सारे एंटोनिम्स हैं, कितनी चीज़ें याद रख लोगे, है ना. सो आपको सिंपल वोकेबलरी का यूज़ करना है. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इट सिंपली मीन्स अगर आप कहना चाहते हैं आई एम हैप्पी, so just say I am happy. You don't need to find the advanced word regarding happy. ये नहीं कि मैं happy के synonym ढूंढने बैठ जाऊँ. जैसे एक happy का synonym मेरे को पता है which is ecstatic. So I am ecstatic today. I am feeling ecstatic. So you don't need to use advanced word initially. जब आप practice वाले zone में हो और आपको लगता है कि now this is the time I don't have that much good command and I want to do my practice so that मेरी थोड़ी सी command बन जाए अच्छी इंग्लिश पे, उस समय उस जर्नी में इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द मोस्ट एडवांस वर्ड फॉर यूजिंग नॉट एन इंटेलिजेंट वर्क. क्योंकि जिस टाइम आप अपने थॉट एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी आपको फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि जब आप व्हेन यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए टू एक्सप्रेस योर थॉट. just expressing your idea what is there in your mind, to express your thought, your focus should be on that only. ठीक है. तो आप सिंपल से सिंपल वर्ड का यूज़ करें. जैसे अगर आपको कहना है आई एम एंग्री, सो जस्ट से आई एम एंग्री. यू डोंट नीड टू से आई एम फ्यूरियस. अभी ये एक्सटैटिक, फ्यूरियस, मुझे ये वर्ड क्यों पता है? क्योंकि देखो आई डिड प्रैक्टिस, आई गेव इट ईयर्स, ठीक है. Maximum I can say that I have a little good command over my English. I'm not that much fluent, but I have command. I can actually express my thought whatever is there in my mind. So first of all you have to make yourself able to express your thought to the other person. पहले आप अपने thought को express करना सीख जाओ in English, ठीक है. फिर धीरे धीरे फ्लुएंसी आती जाएगी, धीरे धीरे आप वोकेबलरिकल वर्ड्स भी नए नए सीखते जाओगे, आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो. ऑल्दो ऑन माई चैनल आई अपलोड न्यू वोकेबलरिकल वर्ड्स एज वेल. सो धीरे धीरे वो आप सीख जाओगे ग्रेजुअली. बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट विद द सिंपल वोकेबलरी, विद द सिंपल वर्ड्स. इवन माई मेंटोर सजेस्टेड मी द सेम पॉइंट्स एंड आई डिड इट बाय माई सेल्फ. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. तो इनिशियली वाइल प्रैक्टिसिंग, वाइल एक्सप्रेसिंग योर थॉट, एकदम से एडवांस वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा और एडवांस वर्ड के चक्कर में आपका फ्लो टूट सकता है, राइट. सो यूज सिंपल वर्ड्स. से आई एम हैप्पी, से आई एम एंग्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. जस्ट यूज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड सिंपल वर्ड्स जो आपके दिमाग में उस समय आते हैं, राइट. नाउ सो द फोकस शुड बी मोर ऑन एक्सप्रेसिंग योर थॉट, not to impress the person. ठीक. Let us move to the next point, which is increase duration of practice day by day. Very important. It is not that कि day 1 you did the practice of 5 minutes तो day 2 भी आप 5 मिनट ही करेंगे. Increase the practice duration. ठीक है. It can be 10. ठीक है. So do practice daily. Practice a little more day by day. This will help you to इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट हैव कॉन्फिडेंस. यू डोंट, ऐसा मत सोचो कि भाई मैं 5 मिनट से ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकती इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या मेरे लिए तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है. डोंट फील लाइक दैट. जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, सो यू हैविंग मोर वर्ड्स इन योर माइंड, आपके पास और आइडियाज़ होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड. एंड धीरे धीरे आप टाइमिंग ड्यूरेशन को बढ़ाओ कि मैंने आज 5 मिनट करी, अब अगले दिन मैं 10 मिनट करूँगी. वाई एम आई स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल इन बिटवीन, ताकि जो मैं बताना चाह रही हूँ ना आपको वो बेटर तरीके से क्लियर हो जाए. बिकॉज मदर टंग को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता. इट इज़ जस्ट दैट इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट. आप इंटरव्यू देने जाओ या कुछ भी है, इंग्लिश इज हैविंग मोर इम्पॉर्टेंस nowadays, not more than mother tongue. I am not saying mother tongue is not important. Mother tongue is very well important. It has its own important, but again English is a kind of a language which we want to develop it as a skill, right? So पॉइंट वॉज दैट कि इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस डे बाय डे. ठीक है. ग्रेजुअली आप सीखेंगे और लर्न करेंगे नई चीज़ों को, आपके पास और आइडियाज़ होंगे. तो इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ प्रैक्टिस.
see how much you can talk on that particular topic, right? सो द टॉपिक कुड बी एनीथिंग कि वॉट यू डिड इन अ होल डे, आज आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, अगर आप स्कूल में हैं सो वॉट वॉज द सिनेरियो देयर, अगर आप मान लो कॉलेज में हैं सो हाउ वॉज योर लेक्चर, वॉट यू डिड फॉर इन्जॉयमेंट. सो topic could be anything. You just have to translate your thought, whatever is there coming in your mind, maybe in your mother tongue, try to translate it while speaking. ठीक है. सो ये एकदम से नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता. प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस इट डे बाय डे, सो दिस विल हेल्प यू, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव फॉर यू इज लिसन इंग्लिश स्पीचेस विद और विदाउट सबटाइटल. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट मी क्लियर दिस वन. लिसन इंग्लिश स्पीचेस. अब तो देखो ऑनलाइन इतना सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इंग्लिश में पॉडकास्ट होते हैं, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होते हैं. सो ट्राई टू लिसन दैट इंग्लिश स्पीचेस. ठीक है. इससे क्या होगा, आपको सबकॉन्शियसली अपने माइंड को ना हैबिचुअल बनाना है इस लैंग्वेज के. वी आर नॉट दैट मच हैबिचुअल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. जैसे हमने मदर टंग तो बचपन से सुनते आए हैं, सो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, वी आर वेरी मच हैबिचुअल, आवर माइंड इज कॉन्शियसली हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग दीज थिंग. सबकॉन्शियसली भी आप अपनी मदर टंग में आसानी से अपनी बात को एक्सप्रेस कर लेते हैं. बट English language is a new thing for us, we can say, because it is not our mother tongue. ये वो चीज़ नहीं है जो हमने बचपन से सुनी है ना. तो अभी हम लेकिन इसको सीखना चाहते हैं. सो फॉर दैट मेक योर सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग इंग्लिश. तो कॉन्शियसली आपको इस पर एफर्ट लगाना पड़ता है. ठीक है. तो इंग्लिश पॉडकास्ट सुने, इंग्लिश स्पीचेस सुने, और विद और विदाउट सब टाइटल का मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट हेयर. देखो, जब आपने मान लो एक पॉडकास्ट है, एक पर्टिकुलर स्पीच है, वो आपने पहली बार सुनी है. अब आप वो जब पहली बार सुन रहे हो, सो मे बी देखो, अगर आप पहली बारी में थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है आपको कि किस बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल इनफ फॉर यू. दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल. यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी वेल, बट यू अंडरस्टैंड इट, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. बट अगर आपने मान लो इंग्लिश स्पीच सुनी है और अभी आप फर्स्ट टाइम नहीं उसको समझ पा रहे हो, तो उसको कम से कम रिपीटेडली सुनो. कम से कम उसी पर्टिकुलर वीडियो को, उसी पर्टिकुलर स्पीच को, इंग्लिश इन्फॉर्मेटिव स्पीच को 1 से 2 या 3 बार सुनो. अब 1 से 2 या 3 बार का मेरा क्या मतलब है, देखो स्टार्टिंग में आप उस पर्टिकुलर स्पीच को ना, ओके लेट मी पुट द स्लाइड, ओके. तो उस पर्टिकुलर वीडियो या स्पीच को आप एक बार विद सबटाइटल्स सुन सकते हो, मतलब सबटाइटल्स को ऑन करके. ठीक है. बट तो आपको सबटाइटल ऑन करके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप पढ़ लोगे ना थोड़ा सा कि क्या आ रहा है इसमें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या बात हो रही है, स्पीकर अपने थॉट्स को, अपने सेंटेंसेस को कैसे यूज़ कर रहा है. देन लिसन दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन. उसी वीडियो को आपने अगेन सुनना है, दोबारा सुनना है, बट दिस टाइम विदाउट सबटाइटल. तो जब अगली बार आप उस पर्टिकुलर ऑडियो को सुनेंगे, उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्पीच को सुनेंगे, तो आपको सबटाइटल्स को बंद कर देना है, क्योंकि एक बार आप सबटाइटल ऑन करके देख चुके हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया है कि स्पीकर, व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू टॉक अबाउट, like which example the speaker wanted to use and whatever was there in the video. ठीक है. सो आपको एक बार सबटाइटल ऑन करने से आइडिया हो गया है, तो लिसन दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन, बट दिस टाइम विदाउट सबटाइटल. सो ग्रेजुअली टर्न ऑफ द सबटाइटल्स एंड जस्ट ट्राई टू लिसन इट बाय लिसनिंग ओनली, डू नॉट रीड इट. जब आपने देखो, अगर आप हर वीडियो में सबटाइटल ऑन करने चालू कर दोगे कि नहीं मैं तो पहले देख लूँ क्या है, दिस नॉट गोइंग टू हेल्प यू. फिर आपको सुनने से ज़्यादा आपका लिखे हुए पे ध्यान होगा. And this is what we don't want. We want to listen more, right? We want to make our mind habitual of listening English. तो इंग्लिश को सुनना हम चाहते हैं, सो उसके लिए सुनना बेहतर है देखने से ज़्यादा. सो पॉइंट यही है कि ग्रेजुअली टर्न ऑफ सबटाइटल को टर्न ऑफ कर दीजिए और उसको बंद कर दीजिए सबटाइटल्स को, एंड जस्ट ट्राई टू लिसन इट. हर एक लाइन आप नहीं समझ पाएंगे, आई नो, स्टार्टिंग में इनिशियली, बट मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलरली इस बारे में इसमें बात हो रही है और कैसे एक बंदा अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करता है. ऑब्जर्व पीपल्स if you are listening them, even if you are listening my video. First of all, I would love to say thank you if you are listening it till this much duration. That means this is you can understand the points and you can try it. Okay, you can give it a try for
let's say for a week, and see if it is going to help you or not. You can tell me in the comment section below. ठीक है, how many steps you actually tried it by yourself and it is helping you or not. You can tell me, right? So the point is that listen English speeches, listen English podcast, right? And without subtitle, most important. And just try to listen it. ठीक है, लिसन मोर सो दैट योर माइंड बिकम हैबिचुअल. कॉन्शियसली अपने माइंड को आपको हैबिचुअल बनाना है इस लैंग्वेज के. ठीक है, तो जब आप सुनते हैं तो आपका बोलने का भी मन करता है, फिर देन यू विल डू प्रैक्टिस, राइट? सो दिस इज अ जर्नी, यू नो, दिस इज अ प्रोसेस. ऑल ऑफ अ सडन आप फ्लुएंट नहीं बन सकते हो इंग्लिश में, राइट? दिस इज वॉट आई सेड इट अर्लियर एज वेल. ओके, सो ट्राई टू लिसन इंग्लिश एज वेल एंड देन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हैव पेशेंस एंड डू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग. आई हैव लिसन, यू नो, सो मैनी पीपल दैट दे से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वर्क ऑन माई ग्रामर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लर्न वर्ब and, you know, different vocabulary. First of all I would do anything else other than speaking. तो बोलते तो नहीं है, स्पीकिंग नहीं करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ करने में निकल जाते हैं, फिर वही चीज़ हो नहीं पाती है कंटिन्यूसली. ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेंसेस का आइडिया है ना, इवन ऑन माई चैनल, ऑन माई दिस चैनल जानवीज लर्निंग, आई एम अपलोडिंग टेंसेस वीडियो एज वेल. हमने अभी तक आई गेस 2 ही पार्ट अपलोड किए हैं जिसमें मैं पूरे टेंसेस विद एग्जाम्पल कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मैं सब वो चीज़ बता रही हूँ. बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक एक पर्टिकुलर टेंस को इलेबोरेट करती हूँ. तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. तो मेरा मानना ऐसा है, देखो, कि अगर आपको टेंसेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, यू अंडरस्टैंड कि भाई फ्यूचर टेंस में रूल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में रूल क्या होता है, जो कि मैं अपने चैनल पे सिखा भी रही हूँ. सो अगर आपको थोड़ी बहुत टेंसेस की नॉलेज है ना, यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. बोलना शुरू कर दो. अब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बस बोलने की शुरुआत कर दो प्रैक्टिस में. ये नहीं कि पहले मैं ग्रामर अच्छे से कर लूँ, मैं बाकी सारी चीज़ें एडजेक्टिव एडवर्ब सब कर लूँ, वो इतना हेल्प करेगा ही नहीं. अगर आपको टेंसेस की थोड़ी बहुत भी आइडिया है, थोड़े बहुत वर्ड आप समझते हो, ठीक है, आपको थोड़े बहुत वर्ड आते हैं, हैप्पी, एंग्री का मतलब गुस्सा, ये सिंपल सिंपल वोकेबलरी का वर्ड आते हैं. सो अब बोलना स्टार्ट करिए. नाउ स्टार्ट टू डू प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअली स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ. ठीक है, एंड हैव पेशेंस. मतलब ठीक है, इट टेक्स टाइम, राइट? इट इज़ अ स्किल विच अगर एक बार इंग्लिश सीख ली तो फिर ज़िंदगी भर खुश हो गए अपने इस फैसले पे, है ना, कि नाउ फाइनली आई लर्न टू दिस लैंग्वेज. इफ़ आई कैन लर्न ना, आई एम टेलिंग यू, इफ़ आई कैन लर्न, you can also learn. See, I'm speaking now, you know, earlier, if you will say, earlier, like initially 2-3 years ago I wasn't that much good in English, but now I speak a little good, I can say, right? So and even I'm practicing now as well. I'm recording this video, this is part of my practice, because here I am speaking continuously, right? So the point is that do practice daily, have patience. It is just a language, it is just a skill. You will develop it gradually. ठीक है, so do practice and think positively. If I can learn, you can also learn. Everybody can learn anything because everybody has their own quality. Everybody is differently talented, you know, everybody has a talent, I believe. So you can just learn this skill. It is just a skill. And thank you so much. I spoke a lot on my video now, and you know, I didn't edit it. I'm telling you, if I am fumbling a little bit, I don't scared of this thing. Okay, I just want whatever I want to express, my idea, my thoughts, for your help, for your English speaking. I am just trying to help in that way. ठीक है, if I am fumbling, even I won't edit this video or the audio of this video, I won't edit it. If I'm even making a mistake, this is okay, you know. यू मेक मिस्टेक, दिस इज़ नॉट योर मदर टंग कि आपसे एक गलती तक नहीं होगी, एक मात्रा की गलती नहीं होगी, है ना, ऐसा नहीं होता. सो इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस. ग्रेजुअली यू विल बिकम फ्लुएंट एंड वेरी गुड स्पीकर. आई बिलीव in that for myself and for yourself as well. So let's learn together, and you can subscribe the channel if you are watching this video till now. You can like the video. Take care of yourself and your family. Very very important. Take care of yourself and your family. Stay happy, stay blessed. Thank you so much. Learn with us. Subscribe the channel Janvi's Learning. We upload these informative content here. Thank you so much and take care. God bless you.